Hi, good morning students. In my previous lecture on CPC, we were on supplemental proceedings, part 6 of CPC. I told you that supplemental proceedings are basically to ensure that the rights of a parties during the course of the trial are not violated. Basically, we want to protect the fruits of the decree, and that is the reason why we have the entire provision given in section 94 of all the supplemental provisions. We may have to protect the fruits of the decree by arresting the defendant so that he doesn't go away forever, or we may have to attach his property, or as we saw, we were on the topic of there may be temporary injunctions. Now, injunctions is a very long topic and many questions come on this matter many times. So, we have to do this topic very properly. Injunctions we have seen can be the subject matter of SRA if they are permanent injunctions. However, the word used in section 94 was specifically temporary injunctions. Temporary injunctions are basically to ensure that the rights of a party during the course of the trial are not infringed. We want to maintain status quo and we want to maintain the rights of the parties. They should not be violated during the course of the trial. We have seen, basically speaking, there are two types of injunctions, restrictive and mandatory injunctions. We first went to the law of restrictive injunctions, which we saw that the basics before granting an injunction, what should be the guiding factors, all those aspects we saw by the help of many Supreme Court judgments. After that, we came to mandatory injunctions. Mandatory injunctions basically set right something which has been undone. We saw the entire law of mandatory injunctions yesterday with all the aspects of mandatory injunctions from the eyes of the Honorable Supreme Court. All the aspects we covered yesterday, and also we covered another aspect which was ex parte injunctions. We also saw different law on that. There are more safeguards naturally, because ex parte means that the other party is not available, so naturally the court has to be more on guard. We also saw all these matters. We have covered almost the entire law of injunctions on various matters, और यही questions आपके मेंस के questions हैं. मैंने साथ साथ आपको questions भी लिखवाए हैं. You please go through those questions and ensure that you write them properly in the way I have been dictating them or discussing with you during the course of my lectures. Now that we are through with the basics and all the aspects of injunctions, now we will go to the Baer Act. Order 39 is titled Temporary Injunctions and Interlocutory Orders. So there are two aspects given here. Even though temporary injunctions, also the word temporary itself shows that these are more interlocutory in nature. Nevertheless, we have two headings, temporary injunctions, and later on we will have another subheading, interlocutory orders. Now, rule 1, cases in which temporary injunction may be granted. So, where in any suit it is proved by affidavit or otherwise. Our first point is proved by affidavit. अब हवा में नहीं allegations लगा सकते. They have to be proved. The word is not shown. The word is proved, and that too not less than an affidavit, because you are going to go for serious procedure against the other party, and that is why the allegations cannot be bold. These allegations cannot be what we can say a totally cock and bull story. So this is the reason why we have to prove by affidavit. So first aspect is that whenever you are moving for any injunction, you have to first prove by injunction the aspects which are coming up here. Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise. Now the question is, another aspect comes up,
These injunctions can only be taken during the course of a suit. ये सारे prelims के questions हैं, इनको ध्यान रखना है. So in the course of a suit, where it is proved by affidavit or otherwise. Now there are three clauses. तीन चीजों को deal कर रहा है. That any property in dispute in a suit. So this property should be in dispute A. B, it should be the subject matter of the suit. So that means if it is not a subject matter of the suit or if it is not in dispute, I cannot ask for temporary injunctions under this rule. That any property in dispute in a suit is in danger. So firstly, the property is in dispute. Secondly, the property is the subject matter of the suit. And thirdly, it is in danger. Now, what are the dangers which can be facing this property? It is being wasted. उसको छोड़ा हुआ है, वो खंडर बन रहा है. Damaged or alienated by any party to the suit. उसको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, उसको बर्बाद कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं उसमें, या उसको बेचने वाले हैं, मॉर्टगेज करने वाले हैं, एलिनेट करने वाले हैं. By any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree. या डिक्री में एग्जीक्यूशन के दौरान गलत तरीके से उसको बेचने वाले हैं. सो अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि क्या डिक्री के बाद भी ले सकते हैं हम टेम्परेरी इंजंक्शन? यस, अगर उसका रॉन्गफुल सेल हो रहा है एग्जीक्यूशन में, तो हम उसको जब तक सही नहीं कराना तब तक टेम्परेरी इंजंक्शन ले सकते हैं. दैट इज वाई टेम्परेरी इंजंक्शन का दायरा बहुत बड़ा है. टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? रोक दो, स्टेटस को कर दो. जब तक मामला डिसाइड नहीं होता तब तक रोक दो. अब वो कोई भी चीज हो सकती है. तो चाहे प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही है, या कोई डैमेज कर रहा है, या एलिनेट करने वाला है, या फिर एग्जीक्यूशन में उसको गलत तरीके से बेच रहे हैं. और that the sub rule B, that the defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors. या फिर डिफेंडेंट पहले ही प्रॉपर्टी को बेचने वाला है या खुर्द बुर्द करने वाला है ताकि फ्रूट्स ऑफ द डिक्री ना मिल सके, ताकि उसके क्रेडिटर्स को कोई बेनिफिट ना मिल पाए, क्योंकि जब प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्रेडिटर क्या करेंगे. सो सेकेंड एस्पेक्ट, द सेकेंड एस्पेक्ट इज क्लियरली ऑन डिफेंडेंट्स. पहले में इफ यू नोटिस द वर्ड वाज एनी पार्टी, कोई भी पार्टी, इधर की उधर की, अगर प्रॉपर्टी को वेस्ट कर रही है या उसको डैमेज करने वाली है, एलिनेट करने वाली है, या एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में गलत सेल हो रहा है, उसका रोका जा सकता है. बी जो सब रूल है वो सिर्फ डिफेंडेंट के ऊपर है कि डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी बेचने वाला है, एलिनेट करने वाला है, ताकि फ्रूट्स ऑफ द डिक्री ना मिल पाए. सी, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit. तीसरा भी, सी भी डिफेंडेंट से जुड़ा हुआ है. सो ए बी सी में दो जो हैं वो डिफेंडेंट स्पेसिफिक हैं. सी कहता है कि प्रॉपर्टी जो है वो प्लेंटिफ के पोजीशन में है, डिफेंडेंट थ्रेट कर रहा है कि मैं तुझे बेदखल कर दूंगा, मैं तुझे डिस्पोजेस कर दूंगा, या अगर बेदखल नहीं करूंगा इतना तंग कर दूंगा कि तू अपने आप भाग जाएगा, और अदरवाइज कॉज इंजरी. तो तीन एस्पेक्ट हो गए. पहला हो गया कि कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई भी पार्टी अगर प्रॉपर्टी को वेस्ट होने दे रही है, डैमेज करने वाली है, एलिनेट करने वाली है, या कोई भी अगर एग्जीक्यूशन गलत हो गया, डिक्री के दौरान गलत सेल होने वाला है,
और दो डिफेंडेंट्स के हैं। एक जहां प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के कब्जे में है और वो उसको रिमूव कर रहा है, दूसरा जहां डिफेंडेंट प्लेंटिफ के कब्जे में है और अब डिफेंडेंट कह रहा है मैं तुझे बेदखल कर दूंगा या तुझे ऐसा तंग करूंगा कि तू अपने आप भाग जाएगा। ऐसे मामलों में टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाएगा। what will be done in these matters? The court may by order grant a temporary injunction to restrain such act. आप ये एक्ट नहीं करोगे, or make such an order for the purpose of staying and preventing, रोक देंगे उसको या उसको बचा लेंगे, the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property or the disposition of the plaintiff or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, as the court thinks fit, until when? Until the disposal of the suit or until further orders. तो जब तक सूट खत्म नहीं होता है या जब तक कोर्ट को सही नहीं लगता है तब तक के लिए हम टेम्परेरी इंजंक्शन दे रहे हैं कि आप ये काम नहीं करोगे, आप वेस्ट नहीं करोगे, आप डैमेज नहीं करोगे, आप एलिनेट नहीं करोगे, आप डिस्पोजेस नहीं करोगे, आप प्लेंटिफ को तंग नहीं करोगे. All these matters can come up as temporary injunctions. Both injunctions are covered here. Restrictive भी हैं और mandatory भी हो सकती हैं. So all these are covered by Rule 1. I hope everybody is clear about the subject matter of injunctions of Rule 1. Now we come to the subject matter of injunctions in Rule 2. Rule 2 basically deals with breach of a contract and injury. दो चीजों को कवर करती है. तो ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट से रोकना है हमने, तो ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देंगे, उसके खिलाफ इंजंक्शन. और एक हो सकता है कोई भी इंजरी, किसी भी तरह की इंजरी. लेट्स गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंट रूल. In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind. ये जो वर्ड है इंजरी ऑफ एनी काइंड, ये 1908 में इंट्रोड्यूस हुआ था सीपीसी में. इंजरी का यहां मतलब है एनी रॉन्ग, एनी हार्म, एनी डैमेज. इंजरी वर्ड यहां बहुत वाइड इंपोर्ट का है. इट्स अ वेरी वाइड मीनिंग सेक्शन वर्ड. सो दैट इज वाई ये जो इंजरी ऑफ एनी काइंड है, इसमें बहुत कुछ या रादर सब कुछ आ जाता है. क्योंकि जहां भी किसी भी टाइप की इंजरी है, मेरे को आप मेरी कास्ट से बाहर निकाल रहे हो, इंजंक्शन ले आऊंगा. आपने क्लब में से मेरे को मेलाफाइडी रीजन से निकाल दिया, आई वॉज मेंबर ऑफ अ क्लब, आपने निकाल दिया मुझे, झूठे आरोप लगा दिए. अब आई कैन गेट अ टेम्परेरी इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन कि मुझे वापस लाओ जब तक मामला डिसाइड नहीं होता. तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं. जहां तक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, we have two types of injunctions here. We have temporary injunctions which are the subject matter of CPC. Order 39 Rule 2 deals with restraining of breach of contract by only temporary injunctions. Perpetual injunctions, permanent injunctions के ब्रीच नहीं करोगे, वो SRA का सब्जेक्ट मैटर है. परपेचुअल इंजंक्शंस के हमेशा के लिए कि जी आप ब्रीच नहीं करोगे, उसको हम कहां पढ़ते हैं? सेक्शंस 38 से लेकर 42 SRA.
1963, read with section 14 SRA. तो परपेचुअल अगर आपको चाहिए इंजंक्शन कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो आप एसआरए में जाओगे. अगर आप चाह रहे हो कि फॉर द टाइमिंग जब तक ये फाइनल डिसाइड नहीं होता परपेचुअल तब तक हमें इंजंक्शन चाहिए तो आप आओगे 39 रूल 2 में सीपीसी में. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए परपेचुअल इंजंक्शन का तो हमेशा कोरिलेट करना ऑर्डर 39 रूल 2 के साथ टेम्परेरी, कि जब तक हम परपेचुअल मांग रहे हैं तब तक टेम्परेरी चलने दो, तब तक तो ब्रीच ना करें. पर जब तक हो रहा है, पता चला कि जब तक परपेचुअल इंजंक्शन मिलेगा हमें सेक्शन 38 से 42 में एसआरए में, तब तक तो ये खत्म हो जाएगा. इसलिए हम ब्रीच ना हो. व्हाट इज अ परपेचुअल इंजंक्शन? अगर मैं एसआरए की बात करूं, परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है? परपेचुअल इंजंक्शन इज अ परमानेंट इंजंक्शन. कई ऐसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां हम उसको परपेचुअली बांध देंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करोगे. अ परपेचुअल इंजंक्शन, अगर मैं थोड़ा सा एसआरए में जाऊं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यूर मास्टर्स नाउ. परपेचुअल इंजंक्शन कौन से कॉन्ट्रैक्ट का दिया जा सकता है? प्लीज रिमेंबर, अगर कोई परफॉर्मेंस किसी कॉन्ट्रैक्ट का आप एनफोर्स नहीं करते, स्पेसिफिकली एनफोर्स कर ही नहीं सकते, तो उसका परपेचुअल इंजंक्शन मिलेगा कैसे? सो प्लीज रिमेंबर वन गोल्डन एस्पेक्ट, लिख लो इस चीज को. अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट whose performance cannot be specifically enforced. जिसका परफॉर्मेंस एनफोर्स ही नहीं कर सकते उसका इंजंक्शन लेके क्या करोगे? तो परपेचुअल इंजंक्शन क्या होगा उसका? रूल 2 के हम दो रूल्स, अगर हम सीपीसी में आए वापस, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं मांग रहा हूं कि मुझे जी टेम्परेरी इंजंक्शन दे दो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो पहला टेस्ट क्या है? क्या उसमें परपेचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है? इन अदर वर्ड्स, क्या यह स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है? तो पहला क्वेश्चन क्या याद रखना है, अगर मैं परपेचुअल इंजंक्शन नहीं ले सकता, ये एनफोर्स ही नहीं हो सकता, तो फिर मैं टेम्परेरी इंजंक्शन कैसे दे सकता हूं? तो पहला टेस्ट क्या है? टू टेस्ट्स. द फर्स्ट टेस्ट इज दैट इन केस नो परपेचुअल इंजंक्शन इज पॉसिबल टू बी अवॉर्डेड, then temporary injunction cannot also be granted. दूसरा, the case is not for perpetual injunction. मामला perpetual injunction का ही नहीं है, और कोई मामला है उसमें ये फालतू में ले रहा है. तो दो चीजें हमेशा याद रखनी है. पहला कि अगर perpetual injunction मांग ही नहीं रहा है, ये मामला कोई और ही है, उसमें इंजंक्शन ब्रीच का क्यों ला रहे हो आप? तो फर्स्टली the case should be of perpetual injunction, and secondly, if the final relief cannot be granted, then of course I cannot give this temporary relief also. I hope everybody is clear about these basic aspects of breach of contract. अब जब भी हम दे रहे हैं कोई भी इंजंक्शन, वो तीन हमारे गोल्डन प्रिंसिपल तो होंगे ही होंगे. कौन से वो तीन? वही तीन जो मैंने आपको बार बार बताए हैं. प्राइमा फेशी केस बन रहा है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा. I hope I am clear on this. With this background, let us go on to read Rule 2. Rule 2, Sub Rule 1. In any suit for restraining the defendant
from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not. कल को हम कहेंगे जी कंपनसेशन मांगा हुआ है हमने, बात खत्म होगी। अब किस बात का? नहीं, कंपनसेशन मांगा है नहीं मांगा वो अलग चीज है। The plaintiff may at any time after the commencement of the suit, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment. Can injunctions be taken after judgment? Yes. Apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right. अब ये चीज ऐसी है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो चलता ही रहता है। वो कहता है ठीक है जजमेंट आने दे फिर मैं तो रोक दूंगा। तो टेम्परेरी इंजंक्शन आप जजमेंट के बाद भी ले सकते हो कि सर इसने रोक दिया है। तो दैट इज व्हाई इंजंक्शन का लॉ जो होता है वो बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? इक्विटी है। हम चाहते हैं कि न्याय हो। वो कभी भी गड़बड़ कर सकता है, तो कभी भी गड़बड़ करेगा तो टेम्परेरी हम इंजंक्शन क्या दे रहे हैं कि ऐसा मत करो, गलत मत करो। तो गलत कभी भी किसी भी स्टेज पे हो रहा हो हम मना कर देंगे। दैट इज अ वाई ऑफ रूल 2। सब रूल 2, द कोर्ट में बाय ऑर्डर grant such injunction on such terms as to the duration of the injunction, keeping on an account giving security or otherwise as the court thinks fit. अब कितनी देर रखना है इंजंक्शन ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि ड्यूरेशन ऑफ इंजंक्शन क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी अगर लेनी है तो क्या लेनी है, वगैरह वगैरह। ऑल द एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट। I hope I'm clear on this very important law. ये दो हमारे पास रूल्स थे on the subject matter of injunctions. अब बाई चांस इनमें नहीं आता, रूल 1 और रूल 2 में नहीं आता। As I said, injunctions always are to ensure justice. तो फिर कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर में जा सकता है सेक्शन 151 सीपीसी में और कोई भी मैंडेटरी या रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन दे सकता है। आई होप आई एम क्लियर ऑन द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूल 1, रूल 2। अब अगर मैंने कल आपको बताया था कि बाई चांस आपने इंजंक्शन नहीं माना और आपने प्रॉपर्टी को एलिनेट कर दिया तो सेक्शन 64 सीपीसी से हिट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें? उसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट बहुत सीरियस है। वो पनिशमेंट है सेक्शन रूल 2A। You know, when you teach so many subjects, so आप सेक्शन को रूल बोल जाते हो, sorry. So when I come to rule 2A, पूरा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। what are the punitive measures given in CPC if a party refuses to abide by the temporary injunctions? या फिर पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो हम पहले बात कर चुके हैं, मैंडेटरी इंजंक्शंस, रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हिच शुड बी गाइडिंग अ कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग एनी इंजंक्शन, डिस्कस द पावर्स ऑफ द कोर्ट इन केस देयर इज अ डिसओबेयंस ऑफ द इंजंक्शन। अब है इसका सेकंड पार्ट है जो अभी मैंने डिस्कस किया है, रूल 2A। 2A deals with the powers of the court जो punitive in nature हैं। Let's see. Rule 2A, breach of injunction. Rule 1, sub rule 1. In the case of disobedience of any injunction granted or other order made under Rule 1 or Rule 2 or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made. अब अगर कोई ब्रीच कर देता है या डिसओबे करता है
ऐसे केसेस में द कोर्ट ग्रांटिंग द इंजंक्शन और मेकिंग द ऑर्डर और एनी कोर्ट टू विच द सूट और प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड, जिसने इंजंक्शन दिया था या अगर सूट ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफरी कोर्ट may order the property of such person guilty of such disobedience or breach to be attached, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। एंड और नहीं है, एंड है, खास ख्याल रखना है, तभी मैंने कहा ये प्यूनिटिव सेक्शन है। एंड मे ऑल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेल्ड इन अ सिविल प्रिजन, प्लस जेल भेज देंगे उसको, सिविल प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इट इज अटैचमेंट एंड सिविल प्रिजन। व्हाट इज द टेन्योर? मैक्सिमम कितना भेजेंगे? 3 महीने। नॉट एक्सीडिंग 3 months अनलेस इन द मीन टाइम कोर्ट डायरेक्ट्स हिज रिलीज, अनलेस की कोर्ट उसको छोड़ दे, 3 महीने अंदर रहेगा। अब हमने अटैच कर ली उसकी प्रॉपर्टी, वो कहता है कोई बात नहीं, अटैच कर लो, बाद में ले लूंगा। मैं नहीं मानता। हमने जेल भी भेज दिया, 3 महीने काट के भी आ गया, वो कहता बड़ा अच्छा था, प्लेंटिव का ही पैसा खर्च हुआ, वो मुझे सब पैसे देता रहा, खाना अच्छा था, आई एम हैप्पी। और तो बिल्कुल बिदक गया वो तो कि जी मैं तो अटैच कर लो प्रॉपर्टी, पड़ी है आपके पास ही पड़ी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? जेल भी हुआ है हमें, चलो। अब इसके लिए बना है अगला सब रूल कि अगर अटैचमेंट 1 साल तक रह गई और तब भी आप इंजंक्शन मानने से इनकार कर रहे हो, फिर क्या करेंगे? नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 year। 1 साल से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखेंगे। एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द डिसोबीडियंस और द ब्रीच कंटिन्यूज, वो कहते कर लो, जो करना है कर लो, मैं नहीं करूंगा, तो 1 साल तक अटैचमेंट रखेंगे बस। और तब भी अगर आपका ब्रीच या आपका डिसोबीडियंस चलता जा रहा है, द प्रॉपर्टी अटैच्ड मे बी सोल्ड, अब बेच देंगे आपकी प्रॉपर्टी। एंड आउट ऑफ द प्रोसीड्स, अब उन प्रोसीड से क्या करेंगे? द कोर्ट मे अवॉर्ड सच कंपनसेशन एज इट थिंक्स फिट टू द इंजर्ड पार्टी एंड शैल पे द बैलेंस if any to the party entitled thereto। आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, जितना नुकसान हुआ है इंजर्ड पार्टी को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो दे देंगे, कुछ बच गया तो आपको वापस दे देंगे। इट्स अ वेरी प्यूनिटिव सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट प्यूनिटिव सेक्शंस ऑफ सीपीसी। अगर आप डिसोबे करोगे, हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे और आपको जेल भेज देंगे, सिविल प्रिजन, मैक्सिमम 3 महीने के लिए। 1 साल तक अटैचमेंट रखेंगे, फिर भी आप नहीं बाज आए तो आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे और उस पैसे में से पार्टी को कंपनसेट कर देंगे। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रूल है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर। वी हैव ऑन दिस सर्टेन जजमेंट्स, आई वुड लाइक टू क्विकली कोट, राइट डाउन प्लीज। FCI वर्सेस सुखदेव प्रसाद, FCI वर्सेस सुखदेव प्रसाद 2009 Supreme Court। The Honorable Supreme Court held that the power under Rule 2A, being punitive, should be exercised with great care and caution। ऑल्सो इस चीज के लिए जब भी आपने ऐसे मामलों में ऑर्डर देना है तो दूसरी पार्टी पे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। आप किसी को जेल भेजने वाले हो, किसी की प्रॉपर्टी लेने वाले हो, तो दूसरी पार्टी, जो पार्टी ये अलेज कर रही है ये चीजें, उस पे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा वो बाकी नॉर्मल जो हमारा सिविल लॉ होता है उससे ज्यादा होगा। ये मामला आया गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने। सुधीर नामासूद्रा, NAMASUDRA, सुधीर नामासूद्रा वर्सेस पुर्नेंदु कुमार
Purnendu, Purnendu, Purnendu Kumar, 1980, Guwahati High Court. Since provisions for violation of orders of injunction are punitive in nature, they require stricter proof. They require stricter proof than in ordinary civil actions. Union of India versus Satish Chandra, 1980 Supreme Court. An order under Rule 2A cannot be passed on mere suspicions or as a matter of course. The order must have been disobeyed by the party with full knowledge of its particulars. If any person is to be arrested under Rule 2A and any property is to be attached, it must be specified in detail. I hope everybody is written. Agla likh lijiye. See, the word is to be attached and may also. And may also. The words may also came up for consideration of the Honorable Supreme Court in Samir Khan versus Bindu Khan. Samir Khan versus Bindu Khan, 1998 Supreme Court. The Honorable Supreme Court held the words may also means that it is open to the court to attach the property plus at the same time detain the party in civil prison if it considers necessary. It is the prerogative of the court to resort to any or both I hope everybody's written all these aspects. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने. उन्होंने कहा इंजंक्शन किसने दिया था? कोर्ट ने. कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो क्या हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला सकते हैं इसके ऊपर? कोर्ट का ऑर्डर है, ब्रीच कर दिया आपने. इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर है, आपने नहीं कोर्ट का नहीं माना. सी प्लीज रिमेंबर, दो तरह के कंटेम्प्ट्स होते हैं. There is a Contempt of Courts Act 1971. उनमें क्या होता है कि दो तरह के कंटेम्प्ट है. एक को हम कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एक को हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट होता है जब आपने कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं माना, उसमें सिविल कंटेम्प्ट होता है. क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है जब आपने चप्पल उतार के मार दी या गाली दे दी, कोर्ट की इंसल्ट कर दी. वो अब यहां पे टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, आपने नहीं माना, तो क्या हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में जा सकते हैं और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला सकते हैं? यह मामला आया कर्नाटका के सामने. दिस मैटर इज H. Govind Raju versus S. Gowda versus S. Gowda, GOWDA, 2007 कर्नाटका हाई कोर्ट. दिस इज अ DB डिसीजन, डिविजनल बेंच का डिवीजन ये डिसीजन है. इसमें क्या हेल्ड हुआ? दे सेड
Rule 2A is a very efficacious remedy. अगर कोई इंजंक्शन को नहीं मान रहा है तो उसको प्रिजन भेज रहे हैं 3 महीने तक, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा तो सेल कर रहे हैं, ये काफी है. इट इज अ वेरी वेरी efficacious remedy. Hence, the High Court cannot invoke its contempt jurisdiction. There is no need for a parallel remedy under the Contempt of Courts Act 1971. It's only in exceptional cases where CPC is inadequate, it's incapable to give adequate relief, and that too in proper time. Then only contempt petitions should be filed. So कायदे से जहां हमारे पास रेमेडी है वहां कंटेम्प्ट में क्यों जाएंगे, और वो भी सीरियस रेमेडी है, इमीडिएट रेमेडी है, तो फिर ऐसे मामलों में वी डोंट गो फॉर कंटेम्प्ट्स. ये हमेशा याद रखना. ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि ऐसी चीजें इंटरव्यू में पूछते हैं, तो अगर हमें ऐसी चीजें याद हैं और हम बाई चांस ये चीजें कोट कर सके तो इंटरव्यू बहुत स्मूथली चलती है फिर. ओके, सो वी हैव सीन द इंजंक्शंस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंजंक्शंस एंड डिसोबेयंस ऑफ ब्रीच ऑफ इंजंक्शंस. हमने अभी रूल 1, रूल 2, रूल 2A देखा. अब हम आ रहे हैं प्रोसीजर पे. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ एन इंजंक्शन? प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ एन इंजंक्शन, रूल 3, रूल 3, 3A, 4, 5 सारा वही है. लेट्स गो एंड सी. पहला पॉइंट ये है, इंजंक्शन किसी भी पार्टी के फेवर में आ सकता है, हमेशा याद रखना है. जैसे कि मैंने बोला, इंजंक्शन बेसिकली इक्विटी पे बेस्ड है, इक्विटेबल कंसेप्ट है, कोई भी मांग सकता है. सो एनीबडी कैन आस्क फॉर इट. सो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज that the party desiring to obtain an injunction against his opponent must make an application, must put up a petition to the court in this behalf. अब मैंने फाइल कर दी, उसमें कोई प्रेयर नहीं रखी, ओ जी ऐसे कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है. This is not enough. There must be also a specific prayer. ये बड़े प्रोसीजरल मैटर्स हैं. ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, मदन कुमार सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुल्तानपुर. मदन कुमार सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुल्तानपुर, 2009 सुप्रीम कोर्ट. A mere filing of petition would by itself not operate as a stay unless a specific prayer in this regard is made. So please remember, a specific prayer for a temporary injunction is necessary. तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा? प्रेयर. स्टेप नंबर 2, नोटिस टू द पार्टी. क्योंकि ये इक्विटी पे बेस्ड है, इक्विटेबल कंसेप्ट है, नेचुरल जस्टिस ऑलवेज इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए जरूरी है कि बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाए. द कोर्ट मस्ट गिव नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स. बट जहां उसको लगे कि पार्टी को जब तक बुलाएंगे बहुत देर हो जाएगी, तब एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन दिया जाता है. यह पूरा क्वेश्चन यहां कवर्ड है, मैंने पहले भी रेफर किया था. उसका प्रोसीजर यहां है. क्वेश्चन क्या बनता है? व्हेन कैन एक्स पार्टे टेम्पररी इंजंक्शन बी ग्रांटेड? What are the safeguards provided in CPC
टू एंश्योर नेचुरल जस्टिस? उसका आंसर है हमारे पास रूल 3. लेट्स गो टू रूल 3. Rule 3. The court shall in all cases, please highlight in all cases, the court shall in all cases, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by delay. यानी कि हर केस में एक्सेप्ट जहां डिले से इंजंक्शन का मकसद खत्म हो जाएगा. बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party. दूसरी पार्टी को नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन देना जरूरी है. पहला सेफगार्ड, द कोर्ट मस्ट गिव अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द फॉर प्रेइंग फॉर अ स्पेसिफिक इंजंक्शन टू द opposite party. Safeguard number 1. अब आते हैं except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay. या फिर जहां पे अगर हमने डिले कर दिया तो जिस चीज के लिए इंजंक्शन मांग रहे हैं वो ही इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो ही बेकार हो जाएगा. अगर ऐसा है तो अब अगर हम एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन देने वाले हैं, provided now proviso deals with ex parte temporary injunction. Provided that where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, ex parte interim or temporary injunction. अब क्या क्या सेफगार्ड्स हैं? पूरा क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का भी आ सकता है. बी वेरी केयरफुल. द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट्स ओपिनियन that the object of granting the injunction would be defeated by delay. As a general rule, it must give notice to the opposite party. अब अगर वो ex parte दे रहा है, what are the safeguards? पहला, the court shall record its reasons for passing an ex parte injunction. Ex parte temporary injunction क्यों देने पे मजबूर हो गया है, वो कारण लिखने अनिवार्य है. एंड सेकंड, अगला सेफगार्ड, एंड नाउ रिक्वायर द एप्लीकेंट. दूसरे जो सेफगार्ड्स हैं वो एप्लीकेंट के ऊपर बेस्ड है. व्हाट आर दोज सेफगार्ड्स? एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट ए टू डिलीवर टू द ऑपोजिट पार्टी और टू सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction. जैसे ही उसको इंजंक्शन मिले उसी वक्त तुरंत वो दूसरी पार्टी को या तो खुद देगा या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा वो नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन कि जी ये ग्राउंड्स हैं कि मैं मांग रहा हूं आपसे इंजंक्शन. वो नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन जिसमें सारे ग्राउंड्स उसने लिखे थे, जिस पे मांग रहा था और जिस पे उसको ग्रांट भी हुआ है, वो नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन इमीडिएटली मिलते ही इंजंक्शन पार्टी को भेजेगा, दूसरी पार्टी ऑपोजिट पार्टी को भेजेगा या रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाएगा. So second aspect is he will immediately either deliver or send by registered post immediately after the order has been passed. पूरा जो डिटेल्स हैं वो उसको भिजवाएगा. टुगेदर विथ, उसके साथ क्या भिजवाएगा? तो एक तो कॉपी भिजवाएगा नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन जो उसकी प्रेयर थी, वो कॉपी भिजवाएगा.
प्लस उसके साथ क्या क्या भेजेगा। अगला, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द एफिडेविट्स फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जो उसने एफिडेविट दिया था, कल को अगर ये झूठ बोल रहा है तो अब डिफेंडेंट भागा आएगा, अब उसको 95 में लेके जाएगा, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो 95 का क्लॉज ए तैयार है हमारे पास, 50,000 रुपए से ले लेंगे हम। अ कॉपी ऑफ द एफिडेविट फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, उसके साथ कॉपी ऑफ द प्लेंट, प्लेंट की कॉपी भी साथ भेजेगा, एंड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द एप्लीकेंट रिलाइज। और बाई चांस कोई मैंने डॉक्यूमेंट यूज किए हैं ये प्रूव करने के लिए कि इंजंक्शन जरूरी है, तो उनकी कॉपीज भी भेजेगा। एंड प्लस टू फाइल ऑन द डे on which such injunction is granted or on the day immediately following that day an affidavit stating that the copies aforesaid have been delivered or sent। अब यहां वर्ड था immediately। immediately आप क्या करोगे? immediately जो आपने नोटिस था एप्लीकेशन का उसकी कॉपी भेजोगे, उसके साथ जो एफिडेविट दिया उसकी कॉपी भेजोगे, प्लेंट की कॉपी भेजोगे, कोई अगर डॉक्यूमेंट्स बेस्ड आपने बनाया था ये लेने के लिए डिसीजन अपने फेवर में तो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेजोगे। अब क्या गारंटी है कि आपने भेज दिया, आप चुप रहे, 10-15 दिन बाद भेजा। इसीलिए आपको चेक कैसे करें कि आपने भेज दिया? आप उसी दिन, इमीडिएटली वर्ड है तो आपने जैसे ही उसको भेज दिया, आप एकदम या मैक्सिमम हम आपको एक दिन का टाइम दे रहे हैं, अगले दिन आप आओगे और अब एफिडेविट दोगे कोर्ट में कि सर मैंने ये सारे कागज उसको दे दिए हैं या उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवा दिए हैं, ये रहा उसका प्रूफ। तो अगले दिन आप या उसी दिन या अगर मैक्सिमम अगले दिन आप कोर्ट में एफिडेविट दोगे कि सर मैंने सारे कागज उसको जो लिखे हुए हैं रूल 3 में वो सारे के सारे भिजवा दिए हैं। We have on this Supreme Court Shiv Kumar versus MCD, Municipal Corporation Delhi, Shiv Kumar versus MCD 1993 Supreme Court। इसमें ये क्वेश्चन आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये आया कि ये सेफगार्ड प्रोसीजरल है, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो कौन सा आफत आ जाएगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये बहुत सीरियस प्रोसीजर है। आप एक आदमी के खिलाफ इंजंक्शन दे रहे हो, वो भी एक्स पार्टी, तो ये तो अगर आपने ये फॉलो ना किया जो यहां लिखा है इन लेटर एंड स्पिरिट, तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इट सेड अगर कोई स्टैट्यूट एक चीज चाहता है कि ऐसे किया जाए इन अ पर्टिकुलर वे, then it must be done in that particular way and no other. I'll read the relevant lines. The proviso lays down safeguards in ex parte interim injunctions. The safeguards must be followed in letter and spirit. The proviso of Order 39 Rule 3 is based on the principle that if a statute requires a thing to be done in a particular manner, it should be done in that manner or not at all. So what are the safeguards? Firstly, the court shall record its reasons for its passing ex parte injunction. Second, the court shall direct the applicant in whose favor the injunction is being passed to deliver to the opposite party a copy of the notice along with the affidavit filed in support of this application, plus a copy of the plaint, plus a copy of the documents on which he is relied upon. उसके बाद he will put up an affidavit in the court that I have sent these documents or I have delivered these documents as required by the proviso. Now, ex parte orders are always frowned upon by the court, by the higher courts.
इसीलिए अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ही सिर्फ आपने देने हैं। ये मामला क्लियर किया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। हरबंस लाल वर्सेस राजेंद्र राजन, हरबंस लाल वर्सेस राजेंद्र राजन, 1989 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। The reasons for grant of an ex parte injunction must be very cogent and not for mere asking. Also, we have already seen an appeal is available, is maintainable against an ex parte order of interim injunction. See, whenever we have to see which are the orders which are appealable, हमें हमेशा देखनी है लिस्ट जो हमें ऑर्डर 43 में मिलती है। ऑर्डर 43 में अगर हम आते हैं तो उसके अंदर आप नोट करो एन ऑर्डर अंडर रूल 1 आर में देखो, रूल 1, रूल 2 ए, रूल 4 और रूल 10 of order 39. All these are appealable orders. We go to rule 3A. Rule 3A is another safeguard which was added by the 1976 Amendment Act. Rule 3A says where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, यानी कि ex parte injunction, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which injunction was granted, and where it is unable to do so, record its reasons for such inability. जहां पे भी आपने ex parte interim injunction दे दिया, तो जिस मैटर के लिए आपने ex parte injunction दिया है उस मैटर को आपने 30 डेज के अंदर अंदर निपटाना है। So please remember, where an ex parte injunction has been granted, the court shall make an effort to finally dispose of the matter in which the ex parte was ordered within 30 days from which the ex parte injunction was granted. In case it is unable to do so, it shall record its reasons for such inability. ये एक और सेफगार्ड है। तो जब भी सेफगार्ड्स के बारे में पूछेंगे, हम पिछले रूल में देख चुके हैं, उसके साथ ये वाला रूल भी सेफगार्ड में जोड़ना है। Rule 4. Rule 4 now tells us what about the order of injunction को क्या सेम कोर्ट उसको चेंज कर सकता है? Let's go to Rule 4. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का है। Any order for an injunction may be discharged, varied or set aside. By whom? By the court. By the court. Now please remember, as I've told you, these are appealable orders. But then they can also be set aside by the same court. क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है, ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स है। सो कोई मनाही नहीं है, हम अपील में भी जा सकते हैं। अगर सेम कोर्ट ना माने तो हम हायर कोर्ट में भी जा सकते हैं। बट सेम कोर्ट भी कर सकता है अगर हम उसको रीजन दिखा दें कि सर इसलिए आपका डिसीजन गलत है या हालात चेंज हो गए। लेट्स सी, एनी ऑर्डर फॉर एन इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज्ड और वेरीड और सेट असाइड बाय द कोर्ट on application made thereto by any party dissatisfied with such order. So please remember, the court, if it is convinced that it was
based on faulty grounds, or there was a fraud played upon the court, or there were misleading statements on which the court passed the judgment or the order, then it may be shown the truth. Now there are two provisos. In one proviso, it is ex parte, in the other it is after being heard. दोनों को देखते हैं. Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or any misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party. Interim injunction ex parte हो गया और पता चल गया कि दूसरी पार्टी ने बेवकूफ बनाया, false, misleading हमें उसने स्टेटमेंट्स दे दी, उसके बेस पे हमने गलत एक्स पार्टे इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया. तो अब क्या करेगी कोर्ट? द कोर्ट शैल विकेट द इंजंक्शन. अब वो इंजंक्शन को विकेट कर देगी. फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, इट कंसिडर्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. अगर वो चाहे कि उसके रीजंस लिखने हैं तो लिख देगी, और अगर वो सोचती कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं लिखने तो मत लिखे. उसको क्या करना है? बस कैंसिल कर देना, इंटरिम है, खत्म कर देगा, खत्म, दैट्स इट. तो प्लीज रिमेंबर, अगर एक्स पार्टे इंजंक्शन ऑर्डर दिया है और पता चल जाए कि पार्टी ने गलत तरीके से ले लिया, कोर्ट को बेवकूफ बना दिया, कोर्ट को मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दी, तो कोर्ट उस इंटरिम एक्स पार्टे इंजंक्शन ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, रिसेंड कर देगा, दैट्स इट. 95 की कार्रवाई तो है ही है. अगर वो चाहे तो सूट भी डाल सकता है. ये था पहला प्रोवाइजो. दूसरे प्रोवाइजो में सपोज सुनवाई हुई थी. जब सुनवाई हो चुकी है और अब हमें पता चल गया, अब जहां सुनवाई हुई होती है दैट मीन्स दूसरी पार्टी थी, अब हम चेंज नहीं करेंगे ऑर्डर. लेट्स सी प्रोवाइजो 2 देखते हैं. प्रोवाइडेड फर्दर that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, ex parte नहीं है, दूसरी पार्टी की हमने पूरी सुनवाई की है, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party. क्योंकि अगर वो कहता है मिसलीडिंग है तो वो पहले ही था, वो पहले ही बोल देता मिसलीडिंग है, तो इसका मतलब वो ग्राउंड तो है नहीं. सुनवाई हुई है, उसने एक्सेप्ट किया, हार गया, तभी उसके खिलाफ मिला है वो ऑर्डर. अब अगर उसकी सुनवाई होने के बाद वो कहता है जी अब वेरी करो, चेंज करो, तो नॉर्मली हम इसको नहीं करेंगे. वी कैन नॉट कीप ऑन मेक इट एन ओपन हाउस अनलेस कि कोई हालात चेंज हो गए हैं, तब तो ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर, अगर सुनवाई हुई है, पार्टी आ चुकी है, सुनवाई के बाद इंजंक्शन का, टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर दिया है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे. अनलेस कि कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं एंड नाउ इट वारंट्स अ चेंज ऑफ द ऑर्डर, तब हम अलाउ करेंगे. सो दो प्रोवाइजो हैं. एक जहां एक्स पार्टी है, वहां पे पता चल गया उसने बेवकूफ बनाया था, दूसरी पार्टी आई नहीं थी, तो अब कैंसिल कर देंगे. दूसरी पार्टी आ चुकी है, सुनवाई हो चुकी है, अब हम कैंसिल नहीं करेंगे अनलेस कि सर्कमस्टांसेस वो प्रूव कर दे कि चेंज हुए थे. एंड फाइनली वी हैव रूल 5, इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स. कॉर्पोरेशन एक जुरिस्टिक एंटिटी होती है. So any injunction directed to a corporation is binding not only on the corporation itself but also on all members and officers of the corporation whose personal action it seeks to restrain. तो जहां हमने कॉर्पोरेशन को रेस्ट्रेन किया है, इट मीन्स कि उसके ऑफिसर्स जो हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, उसके एमडी हैं, उसके सीईओ हैं, वो भी रेस्ट्रेन हो गए. तो रेस्ट्रेनिंग ऑफ अ कॉर्पोरेशन बीइंग अ जुरिस्टिक एंटिटी डजंट मैटर. इट मीन्स कि जो उसके पर्सन्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इंजंक्शन के दायरे में आ जाते हैं. So I hope now everybody is clear about the first 5 rules. We've gone very detailed.
क्योंकि मुझे पता है इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. I could not dare to leave any point untouched. I hope everybody's made their notes. We'll take it up from here, the next part, in my next lecture. Thank you. God bless.